حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آخا میں پلاسٹک بنانے کے کارخانے میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں، جبکہ کارخانے میں موجود تمام تر سامان خاکستر ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حیدرآباد کا علاقہ ہے ٹنڈو آخا، جہاں پر پلاسٹک بنانے کے ایک کارخانے میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ کارخانے میں موجود تمام تر سامان جو ہے وہ جل گیا ہے، خاکستر ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کا علاقہ ہے ٹنڈو آخا، جہاں پر پلاسٹک بنانے کے کارخانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اس وقت بھی لگی ہوئی ہے اور فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں مصروف عمل ہیں، جبکہ کارخانے میں موجود تمام تر جو سامان تھا وہ جل گیا ہے۔ تو مالی نقصان کافی حد تک ہوا ہے، لیکن ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اور عالمی منظرنامے میں ایک بڑے بھوچال کی بات کریں گے۔ بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ میں شکست کے بعد برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے، جس پر ووٹنگ آج ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم نے بریگزٹ بل پر پارلیمنٹ میں شکست قبول کر لی، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگر اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو آئندہ لاہ عمل کے لیے تمام جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ ڈیل کے حق میں 202 اور مخالفت میں 432 ووٹ پڑے ہیں۔ اس سے پہلے دارالامراء میں بریگزٹ ڈیل کے حق میں 152 ارکان نے ووٹ دیا، جس کے مقابلے میں 321 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیے اور یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کو مسترد کر دیا تھا۔ برطانیہ کو یورپی یونین سے آئندہ برس 19 مارچ کو باضابطہ الگ ہونا ہے۔ جی ہاں، بالکل 2 سال کا عرصہ دیا گیا تھا اور 2 سال مکمل ہونے کو ہیں مارچ میں، لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مخالفت میں جو ہے وہ زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور حق میں 202 ووٹ پڑے ہیں۔ وزیر اعظم ٹریزا مے کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ان کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانے کی پیشکش بھی کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد آج پاکستان پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ میں پاک امریکہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ زلمے خلیل زاد امریکی وفد کی قیادت بھی کریں گے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی وزیر خارجہ ایلس ویلز بھی موجود ہوں گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے پاکستان اور افغانستان زلمے خلیل زاد 5 روزہ دورے پر پاکستان آج پہنچ رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں پاک امریکہ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے اور امن و امان کی صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ طالبان کے امور پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ زلمے خلیل زاد امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں توسیع حکومت کے لیے ایک اور کڑا امتحان ہے۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں نون لیگ کے علاوہ تمام جماعتوں نے توسیع کی مخالفت کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بشیر چودھری۔ جی بالکل، ملک میں فوجی عدالتوں کی توسیع کا معاملہ ایک بار پھر درپیش ہے اور حکومت نے اگرچہ ابھی تک اپوزیشن سے رابطہ نہیں کیا، لیکن اپوزیشن جماعتوں کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں اس معاملے پر ضرور غور کیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اس معاملے پر لیڈنگ رول لیا ہے اور انہوں نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی کہا ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی ان کی مخالفت کر رہی ہے تو باقی جماعتیں بھی اس کی مخالفت کریں۔ مسلم لیگ نون کے پاس یہ جواز تھا، یہ موقف تھا ان کا کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ عدالتیں بنی اور ان کو توسیع بھی دی گئی، اس لیے ان کے پاس ان کی مخالفت کا جواز نہیں ہے، لیکن آصف زرداری اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا تھا کہ اب مخصوص حالات سے باہر آنا چاہیے اور یہ فوجی عدالتیں جو ہے ان میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھے گی اور اپنی تجاویز دے گی، جس کی روشنی میں اپوزیشن قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ ان عدالتوں فوجی عدالتوں کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت، لیکن سر دست تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی نظر آتی ہیں۔ کچھ لچک جو ہے وہ مسلم لیگ نون دکھا رہی ہے، لیکن وہ بھی باقی جماعتوں کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے بشیر چودھری، بہت شکریہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکومتی اتحاد میں رہنا ہے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ چلنا ہے، حکومت کے ساتھ کتنی دیر رہنا ہے، بی این پی مینگل آج فیصلہ کرے گی۔ بی این پی مینگل کے وفد نے اپوزیشن اجلاس میں باضابطہ شرکت کی۔ اپوزیشن کمیٹی میں اختر مینگل کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو حکومتی اتحاد میں رہنا ہے
या फिर ऑपोजिशन का साथ देना है? हुकूमत के साथ रहना है तो कितनी देर रहना है, इस पर BNP मेंगल आज फैसला करेगी। उधर शहर इक़्तिदार में अपोजिशन के बड़ों की बैठक ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। इक़्तिदार के ईवानों में कौमी हुकूमत की बाज़ भी सुनाई देने लगी है। बाखबर हलकों का कहना है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ को अहम रोल मिलने का इम्कान है। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के बाज़ अरकान में दर पर्दा अपोजिशन से राब्ते भी हैं, जिनमें दो वज़रा का नाम भी शामिल है। और अपोजिशन के एक अहम रहनुमा ने दावा किया है कि नंबर गेम में हुकूमत को हैरान भी किया जा सकता है। तो जैसे ही अहम मीटिंग हुई तो बातें जो हैं अब हो रही हैं। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन के बड़ों की बैठक ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन आमने सामने आ चुके हैं। इमरान खान ने तनकीदी ट्वीट में कहा कि अपोजिशन दबाव डालकर NRO लेना चाहती है। अपोजिशन कहती है कि मांगे तांगे की हुकूमत NRO देने की पोजीशन में ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान ट्विटर पर, ऑपोजिशन फ्रंट पर। सुबह सवेरे वजीर आजम ने ऑपोजिशन के असेंबली से वॉकआउट पर तनकीदी ट्वीट किया। कहा ऑपोजिशन दबाव डालकर NRO लेना और एहतसाब से बचना चाहती है। वजीर आजम के ट्वीट पर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का इल्जाम बेबुनियाद, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, हम NRO मांगने वाले नहीं। इमरान खान पार्लियामेंट क्यों नहीं आते? हम तो बैकआउट करते हैं, आते हैं। इसलिए आपसे पूछता हूं मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक बोले कि वजीर आजम बताएं किससे NRO मांगा और किसने मांगा। मरियम औरंगजेब बोली कि हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती। खान साहब को तो आदत है कह के भूल जाने की कि उन्होंने क्या किया। जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में PTI ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियाँ रही, जितनी एब्सेंटीज रही, वो उसका कोई बराबर भी नहीं आई है। आपके ट्विटर पे धमकियों से, आपके ट्विटर पे इल्जामात लगाने से, जो पिछले 10 साल से आप लगा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको अपनी अहलियत, अपनी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी ट्वीट करें। ऑपोजिशन का मजीद कहना था कि वजीर आजम साहब, ये वही पार्लियामेंट है जिसका 5 साल आपने बॉयकॉट किया। अपोजिशन जमातों ने जमहूरियत की बका के लिए बड़ी बैठक भी सजा ली। बिलावल भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में दूसरी सियासी जमातों को शामिल करने की पेशकश भी कर दी है। मुआशी उमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला भी किया गया है, जबकि फौजी अदालतों के मुद्दत में तोसी के मामले पर कमेटी भी बना दी गई है। बशीर चौधरी की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत में हलचल के आसार, बड़ी अपोजिशन जमातों के सब बड़े मिल बैठे। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के सरबराहान का इजलास, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मुआशी अमूर पर हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने का फैसला किया गया, जबकि फौजी अदालतों पर भी मुतफिका पॉलिसी इख्तियार करने पर इतफाक समेत आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली गई। हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं, उनको अपने हैंडल करने के लिए, जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम चीज़ों के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमती इक़दामात पर तशवीश का इज़हार किया। मुफाहिमत के बादशाह ने अपोजिशन जमातों के दरमियान मुफाहिमत की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अपोजिशन में इत्तेहाद हो गया। बिलावल भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर नजरसानी का इंदिया भी दे दिया। इत्तेहाद हो जाएगा, अभी हो गया। हमारा जो COD है इसको रिविजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए। दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए
ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल है, उनका हम मुकाबला कर सकें। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल JUI और ANP के रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन ने वही फैसले किए जो अवाम हमसे तवक्को कर रही है। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रेफरेंस पर समाअत करेंगे। अदालत ने गवाह मोहम्मद आफ्ताब को आज तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम के यानी। एहतशाम, बताइएगा आज समाअत का आगाज़ होगा, क्या तफसील होगी? खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस की समाअत आज फिर होनी है। जो 3 मुल्ज़मान हैं इसहाक डार के साथ, वो अदालत में आज भी पेश होंगे और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रेफरेंस पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने गवाह मोहम्मद आफ्ताब को तलब किया था, लेकिन गवाह चूँकि अदालत में पेश नहीं हो सके थे, इसलिए उनको दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया था। अदालत ने इज़हार बरहमी भी किया गया क्योंकि वो गवाह जो हैं उनसे अदालत ने मुतलका बैंक रिकॉर्ड तलब किया था। तो चूँकि दोबारा नोटिस हुए हैं तो आज वो दोबारा पेश होंगे अदालत में और वो मुतलका रिकॉर्ड लेकर अदालत में आएंगे। इसके अलावा 3 मज़ीद गवाहों को भी अदालत ने आज की समाअत पर तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस रेफरेंस पर अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आगे बताएं। इमरान खान कल तक नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे कि वो पर्ची हाथ में लेकर अमरीकी सदर से बात करते हैं, मगर उन्होंने एक और यूटर्न लेते हुए खुद भी इस रवायत पर अमल कर दिया। कहां और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जब बच्चे खेलते हैं और एक बच्चा दूसरे पर इल्जाम लगाता है तो पहले वाला बच्चा कहता है, जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ। नवाज शरीफ साबिक अमरीकी सदर ओबामा से मिले तो हाथ में पर्ची थी, जिसको देखकर वो बात करते रहे। Mr. President, I admire your statesmanship, your wisdom. इस पर इमरान खान अक्सर नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे। मुझे बताएं, कुछ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाओ और ओबामा के सामने खड़ा होकर पर्चियों से पढ़ा होके मिस्टर ओबामा हाउ आर यू, पर्ची पढ़ के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती आज पर्ची के बगैर। वो कह रहे हैं क्योंकि फर्क ये है कि वो जो ये लीडर कभी था ही नहीं। अब जरा ये तस्वीरें देखें। इमरान खान गवर्नर तबू शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ मुआनका भी कर रहे हैं और मुलाकात भी। इनके हाथ में पर्ची है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? जिस पर यकीनन वही कुछ लिखा होगा जो कुछ उन्होंने गवर्नर तबू शहजादा फहद बिन सुल्तान से कहना था। बच्चे सच ही कहते हैं, जो कहता है वो वही होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची में डेरे डाल लिए। गवर्नर सिंध और MKM रहनुमाओं से मुलाकात भी की। कहते हैं सूबे के संजीदा और सियासी लोग तब्दीली चाहते हैं। करप्शन का हिसाब लिया जाए तो जमहूरियत को खतरा हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे हसन अब्बास। वफाकी वजीर इत्तलात के कराची पहुंचते ही सिंध की सियासत में हलचल मच गई। फवाद चौधरी ने तोपों का रुख मुखालिफिन की तरफ करते हुए कहा कि संजीदा लोग सिंध में तब्दीली चाहते हैं। नहीं जानता कराची आने पर मुखालिफिन क्यों घबराहट का शिकार हैं। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात का कहना था कि सिंध में पुलिस गर्दी हो रही है, हमारे MPs परेशान हैं, सेक्रेटरी और IG से एक्शन लेने पर बात करूंगा। फौजी अदालतों का क़याम जो है वो एक गैर मामूली हालात में हुआ था। हम समझते हैं वो एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है और आम तौर पर जब हिकमत अमली कामयाब हो तो उसको बदलना नहीं चाहिए। सो ये एक मामला जो है, इसको अगर आप समझें कि अपोजिशन हर मामले को इस बात से जोड़ दे कि हमारे लीडरों के ऊपर करप्शन के केसेस ख़त्म करें, तो वो तो मुमकिन नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात ने MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से आर्जी मरकज में मुलाकात भी की। इस मौके पर इनका कहना था कि MKM कराची और सूबे की बड़ी सियासी कुव्वत है जिसकी सूबे में अहमियत है। हमारे कुछ जो व्यूज़ हैं वो कहीं पर इकट्ठे हैं, कहीं पर व्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। एक बड़ी पिक्चर में इस वक्त जो है वो MKM की और हमारा अलाइंस है और हमें MKM की ज़रूरत है, MKM को हमारी ज़रूरत है। ये तो रिश्ता जो है हमारा एक पॉलिटिकल ताल्लुक़ है, एक पार्टी हम नहीं है।
तो हमारे अपने अपने व्यूज़ के साथ हम चलेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि करप्शन के खिलाफ इकदाम जारी रहेंगे। सिंध में वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटियाँ भी बनाएगी। कैमरा टीम के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और नाजरीन, यहाँ पर आपको बताएं कि स्कैंडल क्वीन मीरा कराची में निजी इंस्टीट्यूट के तलबा से मिलने पहुंची। इस मौके पर उनका कहना था कि वो अदाकारा ना होती तो टीचर होती। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। खबरों में रहने की शौकीन मीरा जर्द जोड़े और कश्मीरी झुमकों में मशरकी जलवे बिखेरती हुई कराची के निजी इंस्टीट्यूट के तलबा और तालबात से गपशप के लिए पहुंच गईं। मीरा ने अपनी गलत अंग्रेजी बोलने की रिवायत कायम रखी। कभी सुबह कभी शाम, कभी दुख कभी दर्द, लम्हा ब लम्हा बदलती है जिंदगी। इमोशंस इमोशंस इमोशंस। मीरा का कहना था कि अंग्रेजी उनका पसंदीदा मजमून है। शादियों के स्कैंडल्स में मशहूर मीरा का कहना था कि उनकी नई फिल्म बाजी आ रही है, इसके बाद वो बाजी बन जाएंगी। बाजी फिल्म देखें, बाजी फिल्म पहले देख लें, फिर इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी, फिर मैं सचमुच बाजी बन जाऊंगी। अदाकारा मीरा का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में वो अपनी किताब लिखने की भी ख्वाहिशमंद हैं और साथ ही मीडिया की तालीम हासिल करने वाले तलबा को लेक्चर्स भी देना चाहेंगी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जहां पर हसास इदारे ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। औरंगजेब धमाके का मास्टरमाइंड 3 साथियों समेत मारा गया है। कमांडर इस्लाम अपने साथी के घर पर रहाइश पजीर था। हलाक दहशतगर्दों में लाइक, महबुल्ला और शाहिद भी शामिल हैं। ये कार्रवाई की गई। हंगू में हसास इदारों ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। औरंगजेब धमाके का मास्टरमाइंड 3 साथियों समेत मारा गया है। कमांडर इस्लाम अपने साथी के घर पर रिहाइश पजीर था। हलाक दहशतगर्दों में लाइक, महबुल्ला और शाहिद भी शामिल हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस हवाले से आपको आगाह करें, औरंगजेब धमाके का मास्टरमाइंड 3 साथियों समेत मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात ज़ेरे समाअत आएंगे। पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स, मुल्क में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, माजूर अफराद के हुकूक, EOBI में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन से मुताल्लिक केस की समाअत भी आज होने जा रही है। तो आपको बताएं अहम केसेस हैं जिनकी समाअत आज होनी है, जिस हवाले से आपको आगाह करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अमानत गशकोरी। अमानत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसील रहेगी आज? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में चंद अहम मुकदमा ज़ेरे समाअत आएंगे। इनमें पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत आज होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर यह अहकामात जारी किए थे कि जो ठेकेदार हैं उनको बर वक्त अदायगियाँ की जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी हुक्म जारी किया गया था कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है जिसकी टाइम लाइन दी गई थी उसी टाइम लाइन में ही मुकम्मल होना चाहिए। जो वक्त दिया गया था ठेकेदारों की जानिब से उसी में ही इसको कम्प्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है एक अहम मंसूबा है लाहौर के लोगों के लिए। और मंसूबा अगर बर वक्त मुकम्मल नहीं होता तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि पार्किंग के इश्यूज़ हैं वहाँ पे और भी काफ़ी मशीनरी है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब तलब किया था ठेकेदारों से और जो चेयरमैन है इसके ठेकेदारों के उस हवाले से कि वो जवाब जमा कराएँ। इसके अलावा मुल्क में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था, उस पर समाअत आज होनी है। और पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से मुतल्लिक केस भी आज ज़ेरे समाअत आएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। इसके अलावा जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में भी 3 रुकनी बेंच चंद अहम मुकदमात की समाअत करेगा, जिनमें माजूर अफराद के हकूक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, उस पर समाअत आज होगी। इसके अलावा EOBI में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट ने में केस ज़ेरे समाअत है, उस केस की समाअत भी आज होनी है। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उस पर समाअत करेगा। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया अमानत। उधर जहाज़ों के इंजन और कीमती पुर्जे उतार लिए गए थे। मुसाफिरों को खुराक फेंक कर दी जाती थी। तैयारों में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के CEO अरशद मलिक ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। PIA जो है वो
वाइट एलिफेंट है जिसमें यूनियन, करप्शन, माफिया सरगर्म अमल है। मेरे पायलट्स इस वक्त दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, मेरे टेक्नीशियन इस वक्त दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। सिर्फ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे जिनमें उनकी ओनरशिप नहीं थी। मिलियंस ऑफ रुपीस का सालों साल से नुकसान कर रहे थे। हम ऐसी फ्लाइटें चला के आंखें बंद किए बैठे थे जहां पे हमें मिलियंस का नुकसान हो रहा था। अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हमने ये 7 फ्लाइटें जिसपे हम टोटल 500 मिलियन माहाना लॉस कर रहे थे, हमने वो बंद कर दी। कुछ जहाज चलना शुरू हो गए इंशाल्लाह और कुछ 15 फरवरी से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इन रूटों पे आ जाएंगे। मैंने अपने फिजाइया के सरबराह को इस्तेमाल किया, आर्मी के सरबराह को रिक्वेस्ट की और हमने वो पैसे उनको दे के अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वापस डायरेक्ट क्रूज पे आ गए। बट लोगों की नजरें बंद थी, कोई ओनरशिप नहीं थी, कोई तवज्जो नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हमने अपने एक्शन लेने शुरू। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक पायलट जो इस काबिल ही नहीं है, उसके पास बेसिक लाइसेंस जाली है, मैं 400 घंटों की सेफ्टी उसके हवाले कैसे कर सकता? उधर पेशावर के बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का ट्रैक बाजार की शक्ल इख्तियार करने लगा है। मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो ट्रैक पर मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करने वालों ने अपने ठेले सजा लिए हैं। मजीद बात करते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? के सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRT मंसूबे पर जो रूट है तो यहाँ पर आवाम ने ख़ुसूसन यहाँ पर जो छोटे तबके के कारोबारी लोग होते हैं तो उन्होंने यहाँ पर डेरे जमा लिए। यहाँ पर इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं पेशावर का इलाका फिरदौस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आवाम ने यहाँ पर जो कबाड़ हैं, इसी तरह यहाँ पर जो मोबाइल का सामान है, इस तरह तस्बीह, इस तरह किताबें वहाँ पर लगी हैं। इसी तरह साथ साथ यहाँ पर जो कबाड़ दिखाई दे रहा है कि कबाड़ लगा है तो लोगों ने इस का काम शुरू कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानब से जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि इसको मार्च में मुकम्मल किया जाएगा और ट्रैफिक कब शुरू हो जाएगी, इस पर कब ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लोगों ने यहाँ पर इस पर छोटे छोटे सतह पर जो कारोबार है वो ज़रूर इस पर शुरू कर दिए गए हैं और इस पर आए रोज़ यहाँ पर लोग बैठ कर इस पर छोटे कारोबार करते रहते हैं। जी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने 18 से 25 जनवरी तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मलिका कहसार, मरी, मालाकन, चित्राल, दीर, कालाम, सवात, मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में कराची, हैदराबाद समेत अक्सर मकामात पर हल्की बारिश भी होगी। तो मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। मलिका कहसार, मरी, मालाकंड, चित्राल, दीर, कलाम, सवात, मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद ठंडा ठार कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश जमकर बरसेगी। बात करेंगे इसी पर अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा कैसा मौसम रहेगा खैबर पख्तूनख्वा का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने को है तैयार और बादलों ने बसेरा कर दिया है आसमान पर। अगर अदनान आपको दिखा सके तो आसमान पर अब भी काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला जितने भी हैं जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर काली घटाओं ने आसमान पर बसेरा किया हुआ है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश जम के बरसेगी, जबकि साथ साथ में जो बालाई और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी होने का इम्कान है। साथ साथ में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाएं उससे मौसम मजीद सर्द हो गया है और साथ साथ में जो कि बारिशों का जो सिलसिला आज शुरू होगा, क्योंकि काली घटाएं जो है वो आसमान पर छाई हुई हैं और बारिश किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। तो ये सिलसिला जो है वो 2 या 3 दिन तक जारी रहेगा, जिससे मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। साथ साथ में जो कि पेशावर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो कम से कम डिग्री सेंटीग्रेड
5 ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو سینٹی گریڈ ہے وہ تقریباً 12 ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ بارش شروع ہونے کے بعد مزید جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے پشاور اور خیبر پختونخوا کے موسم کے حوالے سے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پر موسم سرد اور مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند ایک مقامات پر بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ روزینہ علی سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ روزینہ بتائے گا موسم کیسا رہے گا شہر اقتدار کا؟ اسلام آباد میں تو آج موسم ابر آلود ہے، جیسے کہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ شہر اقتدار آج سے بادلوں کی زد میں رہے گا۔ آج سے لے کر 17 جنوری تک ایک کمزور سسٹم پاکستان میں موسم کا داخل ہو رہا ہے اور اس سسٹم کے ذریعے سے کچھ مغربی اور شمالی علاقہ جات میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کا ایک بہت زور آور سلسلہ ملک میں داخل ہوگا 18 جنوری کو، اور وہ جو سلسلہ ہے وہ 25 جنوری تک رہے گا، جس میں بہت شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر میں بارشیں ہوں گی۔ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر شدید برف باری بھی ہوگی۔ ملکہ کو اسار مری میں شدید برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کئی فٹ جو ہے برف باری ہو سکتی ہے ان دنوں میں، اس لیے انتظامیہ کو اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں انہیں الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے جائیں۔ جبکہ بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے جو سائبیرین ہوائیں جو چلیں گی اس کے بعد کراچی اور سندھ کے کئی جو ساحلی علاقہ جات ہیں وہاں پر درجہ حرارت میں نمایاں کمی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اسلام آباد میں تو آج موسم ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیش گوئی تو نہیں کی ہے، لیکن ہلکی بوندا باندی کے امکانات کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ روزینہ بہت شکریہ آپ کا۔ روزینہ اپڈیٹ کرتی شہر اقتدار کے موسم کے حوالے سے۔ شہر قائد کے موسم کی بات کی جائے تو وہاں پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 42% ہے۔ موسم پر مزید بات کریں گے اپنی نمائندہ سمین نواز سے۔ سمین نواز بتائے گا شہر قائد کا موسم آج کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ جیسے جیسے دن چڑھے گا ایسا موسم خشک ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس وقت کی ہم بات کریں تو آج کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت کوہر کی صورتحال یہ ہے کہ صبح میں دھند تھی اور دھند کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 77% صبح کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب تھا، جو اس وقت 42% بتایا جا رہا ہے اور اس دھند کی وجہ سے حد نگاہ 2 کلومیٹر تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم خنک رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں موسم خشک رہے گا۔ اس وقت اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو بالکل کام سچویشن ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے۔ جنوب مشرقی یا جنوب مغربی سمت سے کوئی کسی قسم کی ہوا نہیں ہے، رخ ہواؤں کا تبدیل ہوا ہے اور مغربی سمت سے جو ہلکی ہوا ہے اس کو ہلکی ہوا کہا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ جی بہت زیادہ ونڈ شہر میں اس وقت موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 اور 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ موسم تھوڑا سا خشک رہے گا دن بھر اور سردی کی شدت میں جو ایک اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا گزشتہ ہفتے میں، وہ اس وقت کسی قسم کی سردی کسی کیفیت نہیں ہے اور تھوڑا سا دن کے اوقات میں جب دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہلکی سی گرمی بھی جو ہے وہ شہری محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور موسم میں جو ایک دم سے یہ بدلاؤ آیا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ زیادہ سردی کے یہ عادی نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ عرصے تک اگر سردی رہے تو شہریوں کے مزاج پر وہ گراں گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک سمین، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کوئٹہ میں سردی کی شدت میں کچھ کمی ہوئی ہے، درجہ حرارت اب -2 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے رضوان سعید سے۔ رضوان سعید بتائے گا کیا ٹیمپریچر رہے گا اور کتنی سردی پڑ رہی ہے؟ جی بالکل، کوئٹہ شہر میں سردی کی شدت تاحال برقرار ہے۔ سرد ہواؤں نے موسم کو سرد کر رکھا ہے، تاہم درجہ حرارت گزشتہ 2 روز سے آج نسبت بہتر ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں درجہ -5 سے 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، تاہم آج جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں -2 سینٹی گریڈ درجہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کلات کی اگر ہم بات کریں تو کلات میں اس وقت -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے درجہ حرارت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کوئٹہ شہر کا جو موسم ہے وہ فی الحال تو ابر آلود ہے، ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں، تاہم بارشوں کی تاحال محکمہ موسمیات نے کوئی نوید نہیں سنائی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا
कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम सर्दी की जो शिद्दत है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आई है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में मौसम की क्या सूरत हाल है आपको बताया। यूरोप की जानिब बढ़े तो आपको बताएंगे 30 साल की बदतरीन बर्फबारी वहां पर है और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में भी बर्फबारी ने जिंदगी मफलूज करके रख दी है। तो ये सूरत हाल है यूरोप और अमेरिका में 30 साल की बदतरीन बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजनपुर में इंडस हाईवे पर कोट बहादुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बच जबकि 13 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। पेशावर जाने वाली बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक की खबर है राजनपुर से, जहां पर इंडस हाईवे पर कोट बहादुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई है और हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि 13 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत इस्लाहात और तब्दीली के दावे खुलकर सामने आ गए हैं। ओपीडी पर पर्ची की कीमत में 50% इजाफा कर दिया गया है। दूसरे महले में 100 और मई पर्ची 150 रुपए की मिलेगी। अजमत अली शाह की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब मरीजों पर बिजली बनकर गिरने लगी। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में ओपीडी पर्ची की कीमत में 50% इजाफा कर दिया गया। आज से हमने पर्ची की फीस बढ़ाकर 20 रुपए से 30 रुपए कर दी है। 10 रुपए हमने इसमें आज इजाफा किया है। अप्रैल में ये 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी जाएगी। जुलाई से 50 रुपए की पर्ची मिलेगी लालच। मामला यहाँ नहीं रुकेगा। दूसरे मरहले में ओपीडी की पर्ची में 100% और मई से पर्ची 150% इजाफे के साथ मिलेगी। गरीबों के लिए तब्दीली बोलता है ना, तो ये रोज बरोज जो है ना, ये पर्ची जो है ना पहला 20 रुपए था, आज 30 रुपए। कल सारा परेशान है, रोज से रोज बढ़ गया है। 30 का होता है, कल 40 का होता है, कोई पूछता नहीं ना। इस वजह से यहाँ सब गरीब आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका सामना करें। पहले 5 रुपए की थी और फिर 10 की, 1 महीने बाद 40 का, तो गरीब क्या करेंगे। पर्ची की कीमत बढ़ाने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में मायूसी फैल गई। फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ असमत अली शाह, पेशावर। उधर गिलगित बल्तिस्तान का 800 साल पुराना किला बल्तित फोर्ट वादी हुंजा में आज भी कायम और दायम है। हुंजा के जितने भी हुक्मरान आए सबने इसी किले में रिहाइश इख्तियार की। आसार आज भी मौजूद हैं। बल्तित फोर्ट दिखा रहे हैं आपको आफ्ताब मोहम्मद अपनी रिपोर्ट में। वादी हुंजा का रुख करने वाले सियाह 3 केनाल पर मुश्तमिल इस किले का विजिट करके सियाहत का खूब मजा उड़ाने के साथ साथ तारीख से भी वाकफियत हासिल करते हैं। फोर्ट एक तो बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। इसके अलावा करीमाबाद बाजार है। इसके अलावा ये जो मौसम है, स्पेशली जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो इसकी अपनी खूबसूरती है। गर्मियों में भी इसकी खूबसूरती है और सर्दियों में उससे बढ़ के खूबसूरती है। बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट दीगर तारीखी मकामात की तरह इस किले को भी कायम रखने के लिए भरपूर कोशां हैं। कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। चमन की रिवायती और मज़ेदार डिश नमकीन रोस्ट के हर जानब चर्चे हैं। कोई भी दावत नमकीन रोस्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये डिश कैसे तैयार की जाती है ये बताएंगे आपको नजमुद्दीन। ये है बलोचिस्तान का सरहदी शहर चमन, जहां सख्त सर्दी में चटखारेदार ज्यादा पसंद किए जाते हैं। शहरी सबसे ज्यादा नमकीन रोस्ट को ही पसंद करते हैं। शादी ब्याह, पार्टी और घरों में नमकीन रोस्ट खानों में शामिल न हो तो दावत अधूरी समझी जाती है। रोस्ट की तैयारी में भेड़, बकरे या दुम्बे के गोश्त को 4 बड़े टुकड़ों में देग में उबाला जाता है। फिर प्याज का तड़का लगाकर इसके ऊपर फैलाया जाता है। मसाला जात और आलू बुखारा भी शामिल किया जाता है। दहकते अंगारों पर पकाया जाता है। नमकीन रोस्ट हमारे सारे इलाके को पसंद है।
इससे बहुत लोगों का शौक है, बहुत लोग शौक से खाते रहते हैं। नमकीन रोस्ट जो है हमारे इलाके के एक रिवायती खुराक है जिसे लोग यहाँ पर इंतहाई शौक से खाते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में, जैसे शादी ब्याह की तकरीबात में इसको लोगों को सर्व किया जाता है। जो चीज़ें हम खा लेते हैं उससे तो जान ही नहीं बनता है। रोस्ट की बात ही कुछ और है। रोस्ट की तैयारी पर इसकी महक भूख को और भी चमका देती है। चमन की मेहमान नवाजी नमकीन रोस्ट के लिए मशहूर है। बरसों से चली आ रही इस रवायती डिश को आज भी बेहद पसंद किया जाता है। नजमुद्दीन अचकज़ई, 24 न्यूज़, चमन। उधर कराची के नालों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के इंकशाफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी पर सवालात उठा दिए हैं। हर माह चलाई जाने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के काबिल ज़िक्र अहदाफ हासिल न हो सके। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ गंदे नालों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी। WHO मुताल्लिका इदारों की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सीवरेज के पानी से नमूने हासिल किए गए, जिसमें इंकशाफ हुआ कि गंदे पानी में पोलियो वायरस मौजूद है जो 5 साल तक के बच्चों को शिकार बना सकता है। हर माह चलाई जाने वाली पोलियो मुहिम के काबिल ज़िक्र अहदाफ हासिल न किए जाने पर माहिरीन भी हैरान हैं। बार बार मीडिया पे बताया जाता है, सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि देखें ये पोलियो का वायरस इंतहाई ख़तरनाक है, यहाँ तक कि ये उम्र की भी कैद नहीं होती। हम तो वैसे तो इसमें ज़्यादातर ये 15 साल तक के बच्चों को होता है और उसमें भी हाई रिस्क ग्रुप है, पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि ये वायरस एडल्ट को भी लग सकता है। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर DHO कोरंगी डॉक्टर असगर अली शाह का कहना है कि जिस इलाके में ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ बच्चे रेड लाइन पर होते हैं। वो बच्चे रिस्क पे होते हैं, उनको भी हो सकता है और यही पोलियो का वायरस जो है वहाँ से बड़ों को भी लगता है, लेकिन बड़ों को बीमार नहीं करता, लेकिन बड़े फिर बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। गुज़श्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 10 केसेस सामने आए, जिसमें सिंध से 1 केस रिपोर्ट हुआ। कराची के गडाब टाउन से सामने आने वाले इस केस से इंतजामिया के दावों पर एक मरतबा फिर सवाल उठा दिए। कैमरामैन नासिफ शफी के हमरा इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। मुल्क भर से साल 2018 में पोलियो वायरस के 10 केसेस सामने आए। सूबा KP 6 केसेस के साथ सरफहरिस्त रहा। नकल मकानी करने वाले बच्चे पोलियो वायरस फैलाने में मददगार रहे। अजमत अली शाह की रिपोर्ट। पोलियो पूरी उम्र के लिए मफलूज करने का सबब बनने वाला वायरस पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहां नाइजीरिया और अफगानिस्तान की तरह पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई जा रही है। पोलियो का मसला ये है कि अवाम में एक इसके पोलियो के खिलाफ उनके जहन में एक गलतफहमी पाई जाती है और उस बेस पे हमारे जो बहुत से रिफ्यूज़ल है जो अभी भी है कि मतलब उनकी कई इलाकों में हम जाते हैं और वो बच्चे जो है उनको अगर हम कतरे पिलाना चाहें तो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने का वाहिद तरीका उन्हें वैक्सीन पिलाना है। पोलियो की मूजी वायरस की वजह से जिस्मानी माजूरी का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद में रवा साल गुज़िश्ता 3 सालों के मुकाबले में बतदरीज और मुसलसल कमी देखने में आई है। 2014 से अब तक पोलियो के केसेस में 97% कमी आई। ताहम अभी तक पाकिस्तान पोलियो से